So, very good evening, friends. Today is the second session on this IBC. Before we start this session, let me ask you some of the questions. Okay. In section 2, can anybody tell what are the various types? Let me open the PPT first. This is the PPT. Okay. So, नहीं दिख रहा? Okay. अभी देखते हैं. Share screen. PowerPoint. Now it must be visible, है ना? अब दिखाई दे रहा है? Okay. So this we all read yesterday. Now, section 2. Regarding section 2, can anybody tell me what are the companies governed by any special act? Can you tell me? कौन सी insurance company? No. Actually, these are mainly the public sector undertakings, like Food Corporation Act. This Food Corporation of India, it is established under Food Corporation Act 1964. So in certain cases, they bring out a separate act for that corporation. So certain companies, they are governed by any special acts. So Food Corporation, let me read out some of the names. And then State Road Transport Corporations, all state road transport corporations, they are covered under the Road Transport Corporation Act. Then Damodar Valley Corporation, it is also covered under Act. Then Deposit Insurance Corporation. So the special act for this is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Life Insurance Corporation, it is covered under Life Insurance Corporation Act 1956. Then Broadcasting Corporation of India, there are lot of them. The Central Warehousing Corporation, it is established under Warehousing Corporation Act 1962. Then Employee State Insurance Corporation, it is covered under Employee State Insurance Act. So these are some of the acts. So in certain cases, these companies, IBC applies to them as well. Okay. Agla question. Regarding this LLP, I would like to read certain things. LLP के बारे में क्या बोलता है? ये बोलता है कि since by virtue of section 238 of the code, the provisions of the code supersede anything inconsistent in any other law, it may be concluded that voluntary liquidation of a LLP which has not committed any default will be carried out in accordance with section 59 of the code. And all other cases of voluntary liquidation or winding up of limited liability shall be carried out in accordance with section 63, read with section 65 of the Limited Liability Partnership Act. So in case of Limited Liability Partnership Act, because LLP Act is also in our syllabus. So if the LLP has not committed any default, then it will, this voluntary liquidation shall be carried out in accordance with section 59 of the code. And all other cases of voluntary liquidation or winding up of limited liability partnership, that means other than any non-commission of any default. So other cases of voluntary liquidation or voluntary winding up, they shall be carried out in accordance with section 63, read with section 65 of the Limited Liability Partnership Act. What is the idea behind asking you all these questions is that you have to read word by word. ठीक है. अब उसमें क्या है कि हमारी भी लिमिटेशन है. हम ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको पूरा ही एक्ट समझा देंगे या पूरा ही कोड बता देंगे, बट आपको whenever you read any word, आपको अपने आप होना चाहिए भाई स्पेशल एक्ट है तो कौन सा स्पेशल एक्ट है. ठीक है. मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको थोड़ी सी बता देता हूं. इसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है. अब इसके बाद आगे आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. ये हमारा कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 14. आई होप यू आर हैविंग ए कॉपी ऑफ द कोड विद यू. आपके पास कोड होगा, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो.
ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 14 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें क्या है, पहले तो है शेड्यूल्ड बैंक। देखो ऐसा है, यहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं दे आर जनरली बाय नेम। ठीक है। तो एनीथिंग विच इज गवर्नड, जो आरबीआई का शेड्यूल है हमारा बैंक्स का, तो जो शेड्यूल्ड बैंक है वो इसके अंदर आएगा। देन देर आर सर्टन अदर टर्म्स ऑल्सो, एक तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। आपको क्या करना है, 45(1) ऑफ आरबीआई एक्ट पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, हो गया। ठीक है मेरा यार, नजर क्या मारनी, उसको बोल पैसे भिजवा दे। हाँ हाँ जी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या है, एक तो है शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 45(I) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। देन थर्ड इज द पब्लिक फाइनेंशियल। इसका मतलब क्या है, देखो शेड्यूल्ड बैंक अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग है। ठीक है। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई, और ऊपर लिखता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आ गया, मींस लिखा है। मींस का क्या मतलब है, मींस का मतलब इसके अलावा और कोई चीज इसमें नहीं आ सकती। ठीक है। जहां पर वर्ड लिखा होता है इंक्लूड्स, तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या होता है कि और चीजें भी आ सकती हैं। यहां पर जो है इन्होंने 4 चीजें लिख दी, इन 4 के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या है, शेड्यूल्ड बैंक आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपका सेक्शन 45(I) में डिफाइंड है वो आएगा। फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कहां पर डिफाइंड है, क्लॉज 72 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से, LIC, IDFC, UTI एंड इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट वेयर 51% होल्डिंग इज विद द गवर्नमेंट। ठीक है। और एनी अदर इंस्टीट्यूशन as the central government may by notification specify as a financial institution। ठीक है, ये क्लियर है, ये 4 इसके अंदर आएंगे। इसके बाद जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग चीज है। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में कवर नहीं हो रहा, मतलब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में वो कवर नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि उसकी अलग डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अलग डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। यहां पर जो सेक्शन 315 में जो दिया हुआ है, 314 में, उसमें इतना ही है सिर्फ। ठीक है, ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगे। और ये जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 16 है, इसमें वर्ड क्या लिखा, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब और भी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। और इसमें काम क्या क्या है, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट करेगा, नॉर्मली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि जो अदर देन एनबीएफसी है वो तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड डायरेक्टर्स एटसेट्रा। ठीक है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स, तो यहां पर जो है हमें क्या से देखना है, इसको फंक्शन वाइज देखना है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 16 और जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 14 है वहां पर वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ जी। अब ये जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ये कहां था हमारा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो है, ये इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये इसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है फेमा एक्ट में, वो वहां से आपको डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वेयर इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज V ऑफ this Foreign Exchange Management Act 99। ठीक है, एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स ए पर्सन अदर देन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, एक तो हो गया रेजिडेंट, कई होते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, कई होते हैं नॉन रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है अदर देन रेजिडेंट जो है वो सारे ही रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का क्या मतलब हो गया, उसमें जो है आपका
जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी आ जाएगा और नॉन रेजिडेंट भी आ जाएगा। ठीक है, इस पे भी कोई ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहे थे। और आगे देखते हैं, पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि आपको एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक यहां पर वर्ड आता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है या जो चार्ज है, इसका क्या मतलब है, ये हमने पढ़ा था। हम्म, ये पहले ही आना होगा, खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारा है सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में। तो चार्ज की क्या डेफिनेशन है, कोई बता सकता है चार्ज क्या होता है। चार्ज ये कहता है, चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी पर्सन और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज द केस में बी एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मॉर्टगेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कोई भी जो भी इंटरेस्ट या लियन क्रिएटेड है ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी पर्सन और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज द केस में बी एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मॉर्टगेज। चार्ज की डेफिनेशन क्या है, तो कोड जो है ये चार्ज को डिफाइन करता है, चार्ज टू बी एन इंटरेस्ट और लियन ओवर द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी पर्सन एज सिक्योरिटी। इसमें मॉर्टगेज भी शामिल है। तो चार्ज इज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो जहां जहां पर भी चार्ज क्रिएटेड है वो क्या हो गया, हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। सिक्योर्ड क्रेडिटर की भी डेफिनेशन कहीं आ रही थी, यहां पर शुरू में ही आ रही थी मेरे हिसाब से, इससे पहले सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये भी इसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है, the definition of the charge in the code is similar to Companies Act but is wider in context as it uses the word property or assets of any person instead of property or assets of a company। तो कंपनीज एक्ट में जब ये चार्ज की डेफिनेशन दी गई है, वहां क्या लिखते हैं, वहां लिखते हैं प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी, और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी पर्सन। तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल एज द कोड अप्लाइज नॉट ओनली टू कंपनीज बट आल्सो टू other persons such as individuals, partnership firms, LLPs। ये जो मॉर्टगेज होती है, ये मॉर्टगेज भी यहां पर कॉन्सेप्ट आ रही है। तो मॉर्टगेज कितनी तरह की होती है, कोई बता सकता है। वैसे तो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मॉर्टगेज कितनी तरह की होती है, कोई बता सकता है। Equitable mortgage, English mortgage, usufructory mortgage, mortgage by deposit of title deeds. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल मॉर्टगेज। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल मॉर्टगेज होती है। सिंपल में क्या होता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज नहीं होते, सिर्फ पर्सनल बाइंडिंग होती है। ठीक है, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है, कंडीशनल सेल में ये होता है कि भाई ठीक है हम सेल कर देते हैं, ऑस्टेंसिबल सेल होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाएगी अगर पेमेंट हो गई तो। यूजफैक्टरी में क्या होता है कि आप भाई जो अगर प्रॉपर्टी मान लो रेंट पे भी चढ़ी हुई है, तो जो उसका रेंट आ रहा है या उसके जो बेनिफिट्स डिराइव्ड है, लीज रेंट कोई आ रहा है वहां से, तो उसको भी आप इंटरेस्ट में या ईएमआई में एडजस्ट कर लो। फिर इंग्लिश मॉर्टगेज है। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या है कि यहां पर भी ही बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्टगेज मनी। ठीक है ना, और एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाती है इंग्लिश मॉर्टगेज में, मतलब प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है प्रॉपर। और देख लेते हैं, एक जो चीज है यहां पर एक कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में। तो यहां तो देखो हमने सारी डेफिनेशन तो लिखी नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर की है। तो जो कॉर्पोरेट पर्सन है, कॉर्पोरेट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, एक तो आती है कंपनी, एक आती है एलएलपी, और तीसरी आती है एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। और यहां जो कॉर्पोरेट पर्सन है इसमें से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं ट्रस्ट के बारे में क्या होगा, कि ट्रस्ट जो है वो चैप्टर पार्ट 3 में आते हैं, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म, वहां पर। क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में हमारा ट्रस्ट आता है। तो एक तो बात यह है कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर और बैंक फाइनेंशियल, उसमें भी हमें डिफरेंस देख लेना है। और देखते हैं थोड़ा सा। सर इसके अंदर जो कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर है और कौन सा लॉ है? एक तो कंपनी एक्ट हो ही गया, आ ही गया, लिमिटेड हाँ। लायबिलिटी का पार्टनरशिप एक्ट 2008 आ गया, बट हम्म। इसके अलावा कौन सा लॉ है जिसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी वाली कोई पार्टी इनकॉर्पोरेट हो सकती है? मेरे ख्याल तो कोई ऐसा नहीं है सर। ऐसा है कई बार ना वो रेजिडरी क्लॉज डाल देते हैं कि भाई कोई ऐसा हो जाए वो ही कहता है कि भाई कोई भी पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड है विद लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अब देखो अंडर एनी लॉ जो बोला, ये भी नहीं बोला कि इंडिया का ही लॉ है, समझ रहे हो? यहाँ पर फॉरेन का भी लॉ हो सकता है कोई। यस 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 यस, बेसिकली फॉरेन जो एलएलपी है वो कवर कर ली। हाँ, तो वो अगर चीज वो है इंडिया ना। में ऑपरेट कर रही है हाँ एज हाँ फॉरेन हाँ। एलएलपी, यस यस, बिल्कुल। तो इस तरह से आ जाएगा। Yes. मेरे को भी पता नहीं था, आपने पूछा तो मेरे ज्ञान चक्षु नहीं तो खुले। ये डिस्कस करने का ये बेनिफिट तो है। यस। आप पूछते रहा करो इस तरह से। तो और इसमें थोड़ा सा देखते हैं। अब सेक्शन 5 पे चलते हैं, ठीक है जी। सेक्शन 5 में भी कुछ डेफिनेशंस थी, तो वहां पर भी हम देख लेते हैं। डिफॉल्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। हाँ, देखो ऐसा है, इसमें क्या है 59 सेक्शन तक अगर हम पढ़ लेना, आगे कुछ नहीं है, आगे वही रेपिटेशन है। तो हमें जो सेक्शन 59 तक जो है उसको आराम से समझना है। 59 के आगे तो फिर वो कह देता है जी जैसा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है उसको ही आगे फॉलो कर लो। सीआईआरपी में भी एक बार खत्म कर देगा तो लिक्विडेशन में भी कह देगा, उससे भी सिमिलर सा प्रोसीजर है। तो कुछ 10-20 सेक्शन पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि सब रेपिटेशन है। एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, वो ये कि यहां पर ना कई जगह तो यूज किया गया वर्ड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और कई जगह वर्ड यूज किया गया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो सवाल क्या पूछता है? वो सवाल ये पूछता है कि भाई कौन से काम में सीओसी के अप्रूवल की जरूरत है। तो आप मोटी बात ये याद रखो कि जहां पर भी आईआरपी वर्ड है तो वहां तो सीओसी बनती नहीं आईआरपी के सामने, ठीक है ना। तो उसमें सीओसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूएट्स है या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसी सीओसी की अप्रूवल की सीओसी होती नहीं, वो आईआरपी। तो मोटी बात आप ये ध्यान में रखो, जहां पर वर्ड लिखा आईआरपी तो आईआरपी में सीओसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मतलब उसको अपने आप ही काम करना है। और ना वो छुप सकता है इस बात के पीछे कि रजिस्टर्ड वैल्यूर की अपॉइंटमेंट अगर आईआरपी को करनी है तो उसको ही करनी है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है इसको तो इसको ही बनाना है, ठीक है। सीओसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सीओसी को देना है, उसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देना है, सीओसी को देना है, और भी लोगों को जहां जहां पर भी है कॉन्फिडेंशियलिटी का डिटेल लेने के बाद देना है। तो वी शुड बी क्लियर, एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है और उस हिसाब से हमें पढ़ना है। सर ये 30 और 40 दिन के बीच में है, 30 दिन में इसने आना है, चेंज होना है, आरपी ने अगर होना है तो, और अगर लेटर से बोर्ड से हाँ नहीं तो ऐसा ऐसा ना जी, इसीलिए उन्होंने 10 दिन का इसमें गैप दे दिया कि भाई 10 दिन का कई बार होता है ना, टाइम लग जाता है ना भाई, पुराने को आप रिप्लेस कर रहे हो, नया आएगा, कॉन्सेंट लोगे, जो भी करोगे, तो कई बार उसमें इसीलिए 10 दिन का गैप दे दिया कि भाई 10 दिन तक वही चलेगा जब तक नया नहीं आ जाता। एक ना एक आदमी कंट्रोल में जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि पुराना। हाँ, मेरा पॉइंट ये है 30 और 40 के बीच में सीओसी हमारी हो गई कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 30th डे। तो 30 और 40 के बीच में अगर हमें कोई इंटरिम फाइनेंस लेना है या 28(1) का कुछ भी लेना है हमारे को, तो उस केस के अंदर हमारे को मीटिंग तो कॉल करनी पड़ेगी। तो उस समय तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही होगा ना, उस समय आईआरपी ही होगा ना, आरपी थोड़ी आ जाएगा तब तक। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि बात यह है कि जैसे जब सीओसी की पहली मीटिंग होती है तो सीओसी अपनी पहली मीटिंग में क्या कहती है कि वो ये डिसाइड करते हैं भाई इसको आईआरपी को आरपी बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है। अगर मान लो वो कहते हम्म, हाँ वो तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप, वो कहते हैं भाई रिप्लेस करो इसको, ठीक है ना। तो रिप्लेस करो, जब तक वो रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक इसको चार्ज लेना और नए को चार्ज दे करके जाना है। भाई इसने भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इसको मेरा जो मेरा नया पॉइंट ये केस स्टडी पॉइंट है ये, उस समय ये 10 दिन के लिए आरपी है या ये आईआरपी है? ऐसा मेरे है। आइडिया में उस 10 दिन के लिए ये आरपी है, ये सीओसी की मीटिंग कॉल कर सकता है उस 10 दिन में।
हाँ कर तो सकता है, पर ऐसा है ना, देखो ऐसे है, अगर सीओसी ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया है इसकी रिमूवल के लिए, तो इसको कोई मेजर एक्शन नहीं लेनी है उस पीरियड में। समझ रहे हो आप? ये सिर्फ उसको चार्ज देने के लिए बैठा हुआ है और नए वाले आरपी को। लेटर से बोर्ड से आता ही नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बोर्ड से आता ही नहीं, तो उस केस में तो आईआरपी टिल एंड तक वो एक्ट करेगा एज ए आरपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल केसेस हुए हैं सर, ऐसे केसेस हुए हैं बिल्कुल। जिसमें। हाँ उसमें ये ऐसा है ना, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं और वहां से वो लेते हैं। मेरे हिसाब से अभी, अब पता है हम क्या करते हैं खन्ना जी, ऐसा है ना, इसको अभी कुछ लोग नए नए हैं, है ना, तो इसको सेक्शन वाइज चलने देते हैं, जब वहां पर पहुंचेंगे तो उस हिसाब से डिस्कस कर ले, कोई इशू नहीं है। गुड गुड गुड। है ना? हाँ बिल्कुल ठीक सर। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, दूसरों को लगेगा यार हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। बट मैं थोड़ी सी केस स्टडी बनाना चाह रहा था, इस तरीके से नहीं डिस्कस। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो हो ही गया था हमारा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये होम बायर वाला भी हो गया था हमारा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। ये एक जो रिलेटेड पार्टी है ना, अगर आप केस स्टडी बनाना चाहते हैं जो लोग भी, तो एक तो रिलेटेड पार्टी पर केस स्टडी बना सकते हो। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, ग्रुप में आप डालना कि भाई कौन कौन से लोग रिलेटेड पार्टी में नहीं आएंगे। आप इस तरह से केस स्टडी बनाओ, भाई देखो ऐसे है, मेरे को मान लो 500 करोड़ रुपए मिले, ठीक है। अब ये 500 करोड़ रुपए मैं यहां से निकालना चाहता हूं, मैं निकालना भी चाहता हूं, और निकालते कैसे हैं लोग, देखो जो अपने ये जो सीआईआरपी में केस आते हैं कैसे होता है, इसमें होता ही है कि ये क्या करते हैं कि अपनी कंपनियां बना देते हैं अलग अलग, उन कंपनियों में बिलिंग करवा देते हैं, बिलिंग करवा के उसके नाम चेक काट देते हैं, और चेक काट के वहां से वो पैसा चला जाता है। वो एक किस्म से आप समझ लो कि परचेज हो गई, और उधर सेल कर देते हैं, परचेज करनी है तो सेल भी करनी है, सेल से दिखा देते हैं पैसा आया नहीं, परचेज का पैसा दे दिया, तो इस तरह से ये पैसे यहां से निकाल लेते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो 524 है, कि भाई कोई ऐसे केस बताओ जिसमें से मैं पैसे भी निकाल लूं और मैं यहां पर फंसू भी नहीं रिलेटेड पार्टी में। तो क्या, किस तरह से आप क्या मॉडस ऑपरेंडी कर सकते हो, क्योंकि जो केसेस हम देखते हैं एक्चुअल रियलिटी में, तब पता चलता है कि भाई यहां तो बहुत कम लिखा हुआ है, दिमाग तो इसके आगे चलाना है फिर हमारे को, या जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी आप बना सकते हो। और यहां पर जो है होल्डिंग सब्सिडरी वाला भी कॉन्सेप्ट आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। देखो यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएट कंपनी, तो यहां पर एसोसिएट कंपनी की भी कॉन्सेप्ट है। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? Less than 20% holding. 20%, up to 20% होंगे। तो इस तरह से आप जो है एक केस स्टडी इस पे बना सकते हो, और आ भी सकती है। आगे चलते हैं, सेक्शन 6 हो ही गया हमारा डिफॉल्ट, ठीक है, 1 लाख था, अब 1 करोड़ हो गया। सेक्शन 7 भी हमने कर लिया था कल। अब हम ये यहां पर भी ये भी सारा हमारा हो गया था। अब यहां पर थे हम, इस पॉइंट पर थे। अब ये क्या कहता है, इसमें ये कहता है जो सेक्शन 5 है ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां पर क्या कहता है कि जो क्लॉज 12 है वहां पर जो प्रोवाइजो है वो ऑमिट हो जाएगा, और क्लॉज 15 में आफ्टर द वर्ड्स ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड occurring at the words and such other debt as may be specified, मतलब ये कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है वो, कुछ तो जो अमेंडमेंट है वो इतनी रिलेवेंट नहीं है। उनमें क्या किए कि ना एक और उन्होंने अपने लिए मार्जिन छोड़ दिया है कि भाई जहां पर जो लिखा हुआ वो तो है, बट और भी कोई डेट इसमें नोटिफाई वो कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्लॉज 12। ये मैं किताब ये निकाल ही लेता हूँ ना, 1 मिनट। क्लॉज 12 में क्या करा है, ये प्रोवाइजो को हमने ओमिट कर दिया। 1 मिनट,
अच्छा, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मैं मतलब समझा देता हूं आपको। ये 512 में क्या था एक्चुअली, बेसिकली ये था 512 में लिखा था इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मींस द डेट ऑफ, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है, मींस द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 एज द केस में भी। ये कहता है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कौन सी डेट है, वो डेट है डेट ऑफ एडमिशन। इसमें प्रोवाइजो क्या था जो ऑमिट हो गया? प्रोवाइजो ये था, वो ही लिखते थे कि प्रोवाइडेड दैट, पहले, अब ये ऑमिट हो चुका, लेकिन उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पता चले कि वो क्या था और अब क्या हो गया। प्रोवाइडेड दैट वेयर द IRP इज नॉट अपॉइंटेड इन द ऑर्डर एडमिटिंग। कई बार पहले क्या होता था, जब ये प्रोवाइजो था उस टाइम ये होता था कि कई बार एडमिशन तो हो जाता था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट कर लेती थी, लेकिन IRP अपॉइंट नहीं होता था। क्योंकि हमें मालूम है कि IRP कब अपॉइंट होगा? IRP जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या जो कॉर्पोरेट डेटर है वो तो अपने एप्लीकेशन में नाम दे देगा, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर को नाम देना जरूरी नहीं है। तो उस केस में क्या होता था, कई बार ऑपरेशनल क्रेडिटर ने मान लो कोई एप्लीकेशन लगाई, उसने तो नाम देना जरूरी नहीं है, उसने दिया भी नहीं, इसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, IRP अभी अपॉइंट ही नहीं हुआ। ठीक है, अपॉइंट क्यों नहीं हुआ? कई बार क्या होता था, IRP को अपॉइंट कर देते थे, वो नाटक करने लगता था कि जी मैं तो बीमार हूं, ये वो, क्योंकि ये काम है खतरे वाले, लोग समझा देते हैं नहीं भैया ये सब काम मत पढ़ो, ठीक है ना। तो वो नाटक करने लगता था, वो दूसरा फिर दूसरे के लिए आप करोगे। अब वो चीजें इन्होंने खत्म कर दी, इन्होंने कहा दिया कि भाई वो जो ये जो है ना, ये IRP वाला अपॉइंटमेंट का उसके साथ ही होना चाहिए, साइमल्टेनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई लेकिन IRP अपॉइंट नहीं हुआ। तो ये प्रोवाइजो कहता था कि जब IRP अपॉइंट नहीं हुआ तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट शैल बी द डेट ऑन विच IRP इज अपॉइंटेड। ठीक है, तो वो कहते थे भाई एडमिट हो गया लेकिन IRP अपॉइंट हुआ, तो जिस दिन IRP अपॉइंट हुआ उसको हम कहेंगे ये डेट। अब ये चीज इन्होंने ओमिट कर दी यहां से, इन्होंने कहा ये लॉ में फ्लॉ है कि आपकी, क्योंकि जहां पर भी वर्ड यूज होता है वो होता है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन दे रखी है डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन हो गया लेकिन IRP अपॉइंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब गाड़ी तो चालू नहीं हुई ना, मतलब बस के लिए कह दिया रवाना कर दो, ड्राइवर उसका है ही नहीं, जब बस का ड्राइवर ही नहीं है तो कहां से चलेगी बस। ये प्रोवाइजो था जो बाद में ओमिट हो गया। और उसके बाद में अब सर अब प्रैक्टिकली एडमिट ही नहीं हो रहे जब तक IRP अपॉइंट नहीं हो वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये प्रोवाइजो इसलिए ओमिट हो गया। मैं इसका मतलब बता रहा था कि क्या है। अब देखते हैं क्लॉज 15। तो क्लॉज 15 में क्या है, ये क्लॉज 15 बात करता है इंटरिम फाइनेंस की। तो इंटरिम फाइनेंस मींस एनी फाइनेंशियल डेट रेज्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड और बाय द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द प्री पैक। तो यहां पर ये जो चीज लिख दी इसमें प्री पैक को भी शामिल कर दिया, एज द केस में भी एंड सच अदर डेट एज में भी नोटिफाइड। ठीक है, अब एक इसके अंदर जो चीज आती है वो ये एक पॉइंट ये भी आता है कि ये जो इंटरिम फाइनेंस है, इंटरिम फाइनेंस किसके लिए चाहिए? बेसिकली चाहिए फॉर कीपिंग द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब अगला चलते हैं। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि रेजोल्यूशन प्लान किसी भी तरह से हो सकता है। रेजोल्यूशन प्लान होता क्या है? रेजोल्यूशन प्लान मतलब कंपनी को कोई आदमी कहता है भाई मैं इसको चला दूंगा, ठीक है, ये कंपनी बंद पड़ी है, तो उसमें वो कोई भी चीज सजेस्ट कर सकता है। वो कह देगा जी मैं रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, है ना, मर्जर करूंगा, एमएलगमेशन करूंगा, डीमर्जर करूंगा, जो भी जो उसके रिलेटेड प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 230 से चालू होते हैं वो कंपनीज एक्ट में, वो भी हमारे सिलेबस में है। लेकिन किसी भी तरह से ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर डाल दी, पहले ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो जो जो भी अमेंडमेंट होती है उन अमेंडमेंट को थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ लेना होता है। मैं इसमें ठीक भी करता जाता हूं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। सेक्शन 7, सेक्शन 7 हमने पढ़ ही लिया। सेक्शन 7 में क्या होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आइदर सिंगली और ज्वाइंटली। अब ये कहता है इन सेक्शन 7 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन सब सेक्शन 1 बिफोर द एक्सप्लेनेशन, ये वाले प्रोवाइजो डाल देंगे। ये प्रोवाइजो क्या है? देखो ऐसा होता था,
जैसे हमने पढ़ा कि भाई होम बायर जो है, होम बायर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, अब पहले तो लिमिट ही 1 लाख रुपए थी, तो 1 लाख रुपए की लिमिट में तो बड़ा चक्कर हो गया, एक किसी के 1 लाख रुपए नहीं दिए कंपनी वालों ने, तो वो उसको आईबीसी में घसीट लेता था। अब इन्होंने कह दिया कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आपके सेक्शन 26 में रेफर्ड है, सेक्शन 26 की क्लॉज ए और बी ऑफ सब सेक्शन 6A, एक बार वो भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये जो 21 का ये सब सेक्शन 6A का ए और बी। ठीक है, ये 6A का ए और बी क्या कहता है, सेक्शन 21 मैं पढ़ रहा हूं, सब सेक्शन 6A उसका ए और बी, वो कहता है कि वेयर ए फाइनेंशियल डेट is in the form of securities or deposits and the terms of the financial debt provide for appointment of a trustee or agent to act as authorized representative for all the financial creditors. Such trustee or agent shall act on behalf of such financial creditors. ठीक है, जो हम लोग जिनको कंपनीज एक्ट की नॉलेज है उनको पता है कि जैसे डिबेंचर्स के केस में शायद 500 की कुछ लिमिट है मैडम, आपको पता होगा कंपनी सेक्रेटरीज को ज्यादा, तो उस केस में क्या होता है कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी के लिए भी बेसिकली वो बैंक्स होते हैं और वो सेबी के थ्रू ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है, सेबी एक पैनल मेंटेन करता है। तो वो ये कहता है कि जहां पर भी सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स में जो टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट है, आपने किसी से डिबेंचर्स इशू किए, उनमें वहां पर प्रोविजन है कि भाई आपने एक ट्रस्टी या एजेंट अपॉइंट करना है। ठीक है, तो वो जो ट्रस्टी या एजेंट है, इट शेल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर उठ के नहीं आएगा, ये जो इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा या डिबेंचर ट्रस्टी होगा या एजेंट होगा, वही इनके बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है, दूसरा बी क्या कहता है, इज ओन्ड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, दूसरी बात आती है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में मैंने कल भी बताया था कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होता क्या है। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में जब ये आईआरपी अपॉइंट होता है, आईआरपी देखता है बुक्स को, बुक्स के हिसाब से इसका ये डिसीजन होता है कि भाई किसको हमने क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मानना है। ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इज द प्रेरोगेटिव ऑफ आईआरपी। अब ये क्या कहता है, इफ इट इज वेरी फाइनेंशियल डेट, बी मैं पढ़ रहा हूं 21 का 6A का बी, इज ओन्ड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर एज मे बी स्पेसिफाइड अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए। हमने क्लॉज ए तो पहले ही पढ़ ली, क्लॉज में क्या था, डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह की बात थी, और सब सेक्शन 6 the IRP shall make an application to the adjudicating authority along with the list of all financial creditors containing the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their authorized representative। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव लाना है, ठीक है, एक तो क्लास हो गई वो डिबेंचर ट्रस्टी वाली, दूसरा जो बी में दे रखा है वो ये कहता है कि भाई एक्सीडिंग ए स्पेसिफाइड नंबर, एक्सीडिंग तो एक्सीडिंग स्पेसिफाइड नंबर का क्या मतलब है, एक्सीडिंग स्पेसिफाइड नंबर का मतलब ये है कि उस केस में ये एप्लीकेशन लगाएगा, कौन लगाएगा, आईआरपी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि भाई ज्यादा होने चाहिए सर, 10 से ज्यादा होने चाहिए, 10% या 100 नंबर है 100। होम बायर्स वाले केस में उन्होंने अगर लगानी है, हाँ जी, वो इसने अपॉइंट करना आईआरपी। हाँ, आईआरपी क्या करेगा, आईआरपी ने अपॉइंट नहीं करना, आईआरपी एप्लीकेशन लगाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और उसमें अलोंग विद द लिस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स containing the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their authorized representative, और ये अपॉइंट होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का प्रायर टू द, एक मिनट, प्रायर टू द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जो सीओसी की पहली मीटिंग से पहले ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन आईआरपी एप्लीकेशन लगाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हाँ बताइए सर, जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है वो ये है कि आईआरपी पहले, उसके बाद जैसे ही डाटा आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके होम बायर्स हैं ये 10 से ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रस्टी के लिए जो आपके इसमें यहाँ तक होम बायर्स की बात है ना, तो होम बायर्स में है कि भाई एक तो 100 होने चाहिए कम से कम, या फिर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो सेक्शन 7 में ले जाने के लिए सर, यहाँ पे हम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हैं ना सर। हाँ, प्राइस के लिए वो करेगा। देखो ऐसा है, सेक्शन 7 में ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है फाइनेंशियल क्रेडिटर में, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वहां तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसी।
वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाली। ये सेक्शन 7 देखो, एक मिनट, सेक्शन 7 किसकी बात करता है? सेक्शन 7 बात करता है 21 की, 21(6)(a) का ए और बी। ए में डिवेंचर ट्रस्टी दे दिए, दूसरा दे दिया ओन टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड में क्या कर दिया, और जहां इन्होंने क्या किया, ये कहता है not less than 100 of such creditors in the same class or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class whichever is less। ठीक है, और उस एक मिनट करना जी प्लीज। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर, इस तरह से ना कंफ्यूजन होगा लोगों को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल, क्योंकि देखो ऐसा है, हमें पता क्या है, अभी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा नहीं जाना, अभी हमें क्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना उसी में जाना है। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर, अदरवाइज ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह से, कुछ आप बोलेंगे कुछ मैं बोलूंगा तो दिक्कत ज्यादा होने वाली है। सर एक बात बोलूं, जो कन्ना साहब बोल रहे हैं ना वो ठीक है सर। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, टू आइडेंटिफाई ए क्लास देयर शुड बी मिनिमम 10 members, that's all sir, that's what he is trying to, okay I agree when you come to file this one resolution इसके लिए, then you need that 10% and 100 वाला। okay ठीक है। हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर, जहां पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो रियल एस्टेट में कैसे लगेगी, ज्वाइंटली लगेगी, कम से कम 100 अलॉटीज होने चाहिए, उसी प्रोजेक्ट के होने चाहिए, या और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज। तो इसमें प्रोजेक्ट वाइज आपको देख रहा है, अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो में डाली, फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो में क्या है, वही ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स या डिबेंचर ट्रस्टीज, उस केस में क्या है, वो ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर, ये तो हो गया रियल एस्टेट वाला। Where an application for initiating CIRP against a corporate debtor has been filed by a financial creditor referred to in the first and second provisos and has not been admitted by the adjudicator। क्योंकि ये जो आया हमारा 6A, ये एक पर्टिकुलर डेट से आया। ठीक है, अब इससे पहले भी कुछ एप्लीकेशन लगी हुई होंगी, तो जो पहले वाली एप्लीकेशन है उनमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि भाई ये इसका भी कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020 से आया। वो ये कहता है कि जो आपने पहले एप्लीकेशन लगा रखी है जहां पर ये कंडीशन मीट नहीं होती 10% वाली या 100 वाली, उस केस में आपको एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सेड एक्ट, अदरवाइज एप्लीकेशन जो है वो आपकी विड्रॉन मान ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये शुरू से नहीं था प्रोविजन, ये जो 6A था, और जहां पर भी ए वर्ड होता है तो ए वर्ड का मतलब अमेंडमेंट है, वो बाद में आया, ओरिजिनली नहीं था। ठीक है सर, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस। हाँ बताइए। इंटरेस्टिंग है सर, सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। एक रियल एस्टेट कंपनी है सर, उसका प्रोजेक्ट मोहाली में भी चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट चंडीगढ़ चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट दिल्ली में चल रहा है, उसका गुड़गांव में चल रहा है। बिल्कुल। गुड़गांव के प्रोजेक्ट के अंदर 100 लोग इकट्ठे हो गए, या 10% जो भी है वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने उस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि ये तो 7 लगेगा कंपनी के अगेंस्ट, सेक्शन 7 उन्होंने फाइल कर दिया एनसीसी। ये क्या बाकी प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा? नहीं, अभी तो जैसे बाकी प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, एकदम बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ना, वो यहाँ पर बात करता है ना सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट वाइज, और इवन जो उमंग वाला केस था, सीआईआरपी केवल कंपनी के अगेंस्ट है सर, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं है सर। नहीं, वो ठीक है, वो बात, जैसे वो तो उमंग रियल टेक में बोला ही ना। उमंग रियल टेक में क्या बोला? उमंग रियल टेक में यही तो बोला कि भाई ऐसा है, अगर कंपनी के 10 प्रोजेक्ट 9 सही चल रहे हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हो आप? क्योंकि फाइनेंसिंग भी प्रोजेक्ट वाइज होती है नॉर्मली, वो जो इसके अलॉटेज, उसमें रिवर्स सीआईआरपी हुआ था। नहीं, वो ठीक, वो बात ठीक है, बट वो भी बात बोली गई उमंग रियल टेक में ही, तो ये बात आई थी। उन्होंने ये कहा ये क्यों प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी उसी बात में बोली गई। उसमें ये कहा कि भाई आपके अगर बाकी प्रोजेक्ट सही चल रहे हैं तो इसको क्यों बाकियों को डिस्टर्ब करते हो आप? सर ये कैसे चलेगा कैसे? वो तो सीआईआरपी कंपनी के अगेंस्ट होगा, रेजोल्यूशन तो कंपनी का है, किसी एक प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। नहीं, वो तो उमंग रियल टेक में बहुत डिटेल में बताया गया कि भाई आपका पर्पस क्या है। देखो, आईबीसी का पर्पस कंपनी को बंद करना नहीं है या डिस्टर्ब करना नहीं है। आईबीसी का मेन पर्पस है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट वाइज ही इसमें सीआईआरपी करनी है।
हाँ Sir, बताइए इसमें बोले। एक सप्लीमेंट्री है, हाँ। ऑल दिस प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा ना, दे आर ऑल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स है, उसका हम्म, रजिस्ट्रेशन अलग अलग है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज ब्रॉट इनटू. ओ ये ग्रेट। प्रोजेक्ट वाइज ही चलेगा सर, प्रोजेक्ट हाँ वाइज. प्रोजेक्ट वाइज चलेगा। हाँ इसमें भी लिखा है, वो कहता है कि भाई आपको प्रोजेक्ट वाइज ही चलाना है। ठीक सर है। मेरा पॉइंट ये है कि लेटर से प्रमोटर कंट्रीब्यूट करने को देने को रेडी नहीं है, जो शॉर्टफॉल हो गया, जो डेफिशिएंसी आ गई इन द प्रोजेक्ट। अरे कन्ना जी ऐसा है, देखो समझो बात को, अभी ये लोग शुरू आज दूसरी क्लास है, अभी थोड़ा आगे चलने दो, सब लोग सेम वेवलेंथ पे आ जाए, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। या तो हम इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जो पुराने वाला बैच है उसकी संडे को अलग से क्लास ले लिया करेंगे, कुछ इस तरह से सिस्टम बनाएंगे। वरना पता क्या है, बाकियों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, वो सोचेंगे यार ये तो, अब वो आप मान लो अगली क्लास में चढ़ चुके हो, भाई 3 साल के बीए है, ये कई फर्स्ट ईयर में आए हैं, आप चल चुके हो थर्ड ईयर में, वो कहेंगे यार हम तो पीछे रह, वो चक्कर है। आई अंडरस्टूड, आई रियली अप्रिशिएट, अंडरस्टूड सर। समझ रहे हो, देखो मैं इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा था। हमारा तो पर्पस क्या है, समझाना है, कोई कंफ्यूज करना थोड़ी सबको, नहीं ठीक है सर। वो चीज है ना। तो जब यहाँ हमें क्या पढ़ना है, यहां से चलना है। अगर वो कहता है सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो हमें सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के हिसाब से चलना है, बस बात खत्म। अगला कहता है कि इन सेक्शन 7 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन सब सेक्शन 4, अब सब सेक्शन 4 देखते हैं 7 का। तो सब सेक्शन 4 में क्या कहता है, द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी inserted provided that if the adjudicating authority has not ascertained the existence of default and passed an order under subsection 5 within such time, it shall record its reasons in writing for the same. देखो ऐसा है कि पहले क्या लिखा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में, वो ये कहता है कि ये प्रोवाइजो हम इंसर्ट कर देंगे। इस प्रोवाइजो का मतलब क्या है, इस प्रोवाइजो का वैसे तो वर्ड, ये बहुत सारे कोर्ट केसेस में इट वाज हेल्ड कि जो वर्ड एसर्टेन है, एसर्टेन का मतलब इट इंक्लूड्स इन इटसेल्फ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एंड इट मींस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज सेटिस्फाइड इटसेल्फ दैट डिफॉल्ट एग्जिस्ट्स। अब ये कहता है कि इफ it has not ascertained it, that means it has not examined it correctly and it has passed an order within such time, it shall record its reasons in writing for the same. तो इसको क्या है कि अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, अगला चलते हैं, हमारा है सेक्शन 8। ठीक है, अब सेक्शन 8 क्या कहता है, हमने पढ़ लिया कि 3 तरह की एप्लीकेशन हो सकती हैं, हम पार्ट 2 पर चल रहे हैं अभी। तो पार्ट 2 में 3 तरह की एप्लीकेशन हो सकती हैं, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, और तीसरा एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो सेक्शन 8 और 9 को हमें मिला करके पढ़ना है। एप्लीकेशन जो जाती है वो सेक्शन 9 में जाती है, लेकिन 9 की एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें सेक्शन 8 में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उन कंडीशंस को हमें पूरा करना है। वो कंडीशन क्या है, मान लो डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट तो सेक्शन 4 से आप देखोगे कि डिफॉल्ट कब ट्रिगर हुआ, जब डेट ड्यू था, है ना, और पेमेंट नहीं हुई। अब जब डिफॉल्ट हो गया तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो क्या करेगा, एक डिमांड नोटिस देगा या कॉपी ऑफ अनपेड इनवॉइस। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि हम ना इनवॉइस रेज नहीं करते, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है हमारे, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि हम इस तरह से चलते हैं कि भाई हमारा वहां पर वो बिलिंग होती है बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ सर्टेन माइलस्टोन्स, कि भाई ये मान लो पहले फ्लोर का लेंटर पड़ जाएगा तो हम इस तरह से पेमेंट होगी, इस तरह से, ठीक है, काम तो चलता रहता है। तो अगर, या जैसे मान लो हम सीए हैं, ठीक है, हम भी ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, तो अगर हमने क्या किया, मान लो एक क्लाइंट का काम हम कर रहे हैं, बिलिंग तो हर रोज तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, तो अगर इनवॉइस नहीं रेज किया गया तो आप डिमांड नोटिस दोगे, अदरवाइज जो भी आपका अगर इनवॉइस रेज किया हुआ है तो कॉपी ऑफ अनपेड नोटिस दोगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिमांड नोटिस देगा डेटर को, ठीक है, या फिर कॉपी ऑफ अनपेड इनवॉइस। और कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, कॉर्पोरेट डेटर की क्या जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट डेटर को 10 दिन के अंदर रिवर्ट करना है। 10 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ओसी को बताएगा कि भैया हमारा तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, डिस्प्यूट के बारे में हमने कल थोड़ा डिस्कस किया था,
और डिस्प्यूट में क्या है, डिस्प्यूट हमने वहां देखा था कि इंक्लूड्स वर्ड आ गया, ठीक है। जो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी थी वहां पर वर्ड था मींस, बाद में आ गया इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स ए सूट और आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट इफ एनी और रिकॉर्ड ऑफ पेंडिंग सूट आर्बिट्रेशन may or may not have been filed before receipt of such notice। तो ऐसा नहीं कि कोई जरूर कोर्ट केस ही चल रहा हो या कोई आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही चल रहा हो, अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, आपने डिफेक्टिव गुड्स के बारे में उसको इवन ईमेल पे भी बता दिया, तो भी डिस्प्यूट एग्जिस्ट आपका करता है। वो क्या बताएगा, भाई हमारी तो डिस्प्यूटेड है, आप कह रहे हो हमने आपका इतना काम कर दिया, तुम्हारा तो काम ही डिफेक्टिव था और ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया था आपको, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये फाइल ये होना चाहिए बिफोर रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस। जो भी डिस्प्यूट है वो आपका कब होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए ऑन द बिफोर द रिसीट ऑफ। ऐसा नहीं कि नोटिस आने के बाद में आपने एज ए आफ्टर थॉट ये कह दिया भाई माल आपका खराब है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये भी पढ़ते हैं, मान लो कोई ट्रेडर है, ठीक है, अब उसने आपसे माल ले लिया, उसने माल लेकर के आगे भी बेच दिया, उसके पास स्टॉक में नहीं है, तो इस टाइम वो डिस्प्यूट का क्वेश्चन नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, अब भैया तुमने तो माल आगे बेचकर रिकवरी भी कर ली है ना, अगर डिफेक्टिव था तो हमें बताते, हमें रिटर्न करते, ठीक है। जब हम पेमेंट मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो माल डिफेक्टिव था, या और रीपे द अमाउंट, या फिर ये कि पेमेंट कर दे, या फिर बता दे कि भैया हम तो इस डेट को यार पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं तुम्हारे को, ठीक है। ये कॉपी है चेक की। तो ये किसकी ड्यूटी है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है। उसको नोटिस मिलेगा, डिमांड नोटिस मिलेगा या कॉपी ऑफ अनपेड इनवॉइस मिलेगी, और उसको 10 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस वो आपको ये करना है, या तो बताए कोई डिस्प्यूट है, या फिर जो है अपना रीपे करे और फिर चेक की कॉपी इसमें दे। अगर मान लो वो कुछ नहीं बोलता, वो तो जेल में पड़ा है बेचारा, वो क्या बोलेगा, ठीक है। आपने नोटिस भेज दिया, वो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका बंद है, वो तो वहां नोटिस चला गया, ठीक है। 10 दिन हो गए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस और इनवॉइस, तो ओसी क्या करेगा, ओसी एप्लीकेशन फाइल करेगा टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसमें क्या क्या लगाएगा, एक तो लगाएगा कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस, ठीक है, जो उसने कॉपी ऑफ इनवॉइस लगाई थी। फिर एफिडेविट लगाएगा इसमें, ये एफिडेविट अगर वो नहीं देता या गलत एफिडेविट दे देता है तो उस पर पेनल्टी है ऑपरेशनल क्रेडिटर के ऊपर। Affidavit to the effect that there is no notice given by the corporate debtor relating to a dispute of the unpaid operational debt, ठीक है, कि भाई उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कॉर्पोरेट डेटर ने कहा कोई ऐसी बात, डिस्प्यूट वाली बात उसने कोई नहीं की, इस बात का एफिडेविट कौन देगा, ओसी। फिर अगर उसको कोई बैंक से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई इसकी पेमेंट नहीं हुई तो ठीक है, अगर ये यहाँ पर वर्ड लिखा है कि इफ अवेलेबल, ठीक है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। ओसी के केस में क्या है, ये आरपी प्रपोज भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में भी 14 दिन की पावर है, उसको 14 दिन के अंदर उसको एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है, यहाँ पर भी 14 दिन के अंदर ही उसको एडमिट या रिजेक्ट करना। अगर मान लो 14 दिन के अंदर नहीं होता तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप वो भी फिर रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो है पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी समझ लो कि आप फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। जब हम इसकी केस स्टडीज करेंगे, जैसे सीआईआरपी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सीआईआरपी तक के प्रोविजंस पढ़ के हम लोग इसकी केस स्टडी करेंगे। जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो फिर सेक्शंस को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग हो सकता है कल ही उन्होंने शुरू किया हो, तो अभी वो ज्यादा मतलब हाई लेवल पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जो यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं खन्ना जी, ये 2-2 महीने से लगे हुए हैं, ये चक्कर है। तो और उसके अलावा इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो इसीलिए मतलब इनका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, ये चक्कर है। तो ओसी क्या करेगा, ये प्रपोज कर भी सकता है या नहीं भी, ठीक है, इसकी मर्जी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 14 दिन के अंदर एडमिट करना या रिजेक्ट करना है, लेकिन अगर रिजेक्ट करना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है एप्लीकेशन में तो उसको कहेगा भैया आप 7 दिन के अंदर जो है
वो ठीक कर दो विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और अगर मान लो 7 दिन के अंदर नहीं भी करता तो भी अगर वो सफिशिएंट रीजंस देता है कि भाई मैं नहीं कर पाया इस डिफेक्ट को, तो वो पीरियड को भी बढ़ाया जा सकता है। जितने भी टाइमलाइंस हैं यहाँ पर वो सारी की सारी डायरेक्टरी हैं, कोई भी टाइमलाइन मैंडेटरी नहीं है, चाहे वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए हो चाहे वो एप्लीकेंट के लिए हो। उसके अलावा सफिशिएंट कॉज होगी ये रिजेक्ट करने तब भी क्या वो टाइम देंगे? क्या अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट कॉज है हमें रिजेक्ट करनी है, तो क्या उसके बाद भी उनको 7 days देने पड़ेंगे उसके लिए? नहीं देखो ऐसा ना, हाँ हाँ नहीं ऐसा है भाई, अगर कोई डिफेक्ट है तभी तो देंगे, वरना तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगा तो आप अपील में जाओ। देखो ऐसा ना भाई, वो आप विदाउट गिविंग एनी मतलब आपका रेक्टिफिकेशन वो सीधा भी रिजेक्ट कर सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा है टाइम कब देगा? अगर वो क्योरेबल डिफेक्ट है, अगर कोई क्योरेबल डिफेक्ट है उसमें, उसको लगता है कि भाई ये चीज छूट गई, तो वो करेगा ना। अगर रिजेक्शन का रीजन ये है, ठीक है, अगर रिजेक्शन का रीजन मान लो डिस्प्यूट है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो समझ रहे हो। तो बेसिक, बट फिर भी क्या करते हैं, देखो ऐसा होता है मामले तो ये फिर अपील में जाते हैं, तो उसके लिए फिर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नॉर्मली देते हैं। वो क्यों देते? दूसरी पार्टी को अगर नहीं सुना वो तो बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, एनसीएलटी में चला जाएगा वो। जनरली एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो तो हाँ, तो बिफोर रिजेक्टिंग दे विल गिव द नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये उसको जो है क्योर करेगा। अच्छा, उसके बाद में मान लो कोई कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, जो शेयर होल्डर है या जो पर्सनल गारंटर है, ठीक है, अब वो यहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते। तो नो पर्सन इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स और द पर्सनल गारंटर्स हैव ए राइट ऑफ बीइंग हर्ड एट द स्टेज ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन एडमिट हो रही है तो वो ये नहीं कह सकते जी हम शेयर होल्डर है हमारे को भी सुनो ना, उनको नहीं सुनेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और ना ही पर्सनल गारंटर को सुनेगी। पर्सनल गारंटर को बेचारे को वैसे ही टटिया लग गई, वो सोचे यार मैंने जो है पर्सनल गारंटी दे रखी है, ये कंपनी जा रही है सीआईआरपी में, वो कहेगा जी मेरी बात भी सुनो ना। अभी इस स्टेज पर कुछ नहीं सुनेंगे, बाद में, ठीक है, एडमिशन के स्टेज पे नहीं सुनना। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10 इज नॉट ए मनी क्लेम और सूट। ये कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है। बेसिक पर्पस इसका क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। और मैंने बताया था ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, बेसिकली कंपनीज के लिए लाया गया कि कंपनी जो है वो जो डूब रही है कंपनियां, उनको रिकवर किया जाए। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ सेटिस्फाइड इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट ए डिटेल्ड डिसीजन। तो डिटेल्ड डिसीजन जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, रीजंस अपने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग, ठीक है। वो अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया रख सकते। अब सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है? कंपनी के केस में सेक्शन 10 कब लगता है? अगर आपका डिफॉल्ट है, और अगर डिफॉल्ट नहीं है, आपने कंपनी वैसे बंद करनी, तो सेक्शन 59 में फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोविजन है। और ये जो हमारे कंपनीज एक्ट में भी वाइंडिंग अप से रिलेटेड प्रोविजन थे, ठीक है, तो वहां से ये 2 उठा करके यहां पर ले आए आईबीसी में। कौन कौन से 2? अगर डिफॉल्ट होता है तो सेक्शन 10 में जाओ, अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो सेक्शन 59 में जाओ। उसके अलावा भी हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं कि भाई रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें वहीं पर ही हैं अभी कंपनीज एक्ट में। अब सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है इन केस ए कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट, ठीक है, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशंस में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो उसमें कौन आता है? वो हमने पढ़ा था ना कि भाई उसके अंदर कंपनी आ जाएगी, या उसके जो सीईओ सीएफओ वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाएगी। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटर या उसका ऑथराइज्ड मेंबर या पार्टनर इन केस ऑफ एलएलपी है, और इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज, ये सारे जो है ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आ जाते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। करना क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, या 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। एप्लीकेशन लगाने में और रेजोल्यूशन में फर्क है।
एप्लीकेशन जो लगानी है वो तो कौन लगाएगा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है इन केस ऑफ एलएलपी, ठीक है। लेकिन जो रेजोल्यूशन पास करेंगे वो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स करेंगे, नॉट ओनली डेजिग्नेटेड बट ऑल पार्टनर्स, ठीक है। इसके साथ क्या लगाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज में बी स्पेसिफाइड, ये भी आपको एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। और आरपी, जिसका नाम आप आईआरपी प्रपोज कर रहे हो, और कोई उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, वो तो फॉर्म 2 के अंदर ही लिखा होता है, ठीक है। अब अगर आपने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगा दी, तो जो एफसी है या ओसी है, इट में डिस्प्यूट दैट देयर इज नो डिफॉल्ट, ये तो जबरदस्ती बंद कर रहा है जी, कंपनी तो सॉल्वेंट कंपनी है, ठीक है। तो एफसी और ओसी में डिस्प्यूट दैट देयर इज नो डिफॉल्ट, दैट द डेट इज नॉट ड्यू एंड इज नॉट पेएबल। However, the adjudicating authority has no option but to admit the application if the conditions laid down are satisfied, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट कर सकता है कि भाई कोई डिफॉल्ट तो है ही नहीं, या डेट, वैसे तो कोई ऐसा करेगा ही क्यों, ठीक है ना। लेकिन इसमें सेक्शन 10 ये कहता है कि भाई अगर कंडीशंस सेटिस्फाइड हो, कंडीशंस क्या होनी है भाई, एक तो एप्लीकेशन लगानी है, फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है विद 3/4 मेजॉरिटी, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, आरपी का नाम देना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन एडमिट करनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर वही 14 दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, कोई अगर रिजेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो बिफोर रिजेक्टिंग दे विल गिव नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। इसके अलावा हम जब रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो भी ये सेक्शन अपने आप ही रिवाइज होंगे। ये जो आपका बैच चलने वाला है, ये कम से कम 2 महीने चलेगा, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। जो लोग पुराने चल रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई वो मार्च में ही जो है उनको पूरा सिलेबस और कवर करा दें, ताकि मार्च एंड तक अपना पेपर दे लें। लेकिन जिन्होंने अभी शुरू किया, उनको कम से कम 2 महीने जो है वो तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। अप्रैल एंड में आप अपना कोई स्लॉट ले लो, या अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो तो वो आप कर सकते हो, या आपके पास ज्यादा टाइम है तो जो पुराने वाले वीडियो लेक्चर्स भी देख करके आप और आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है। सेक्शन 10 ने क्या कहता है, सेक्शन 10 ने बात करता है कि भाई ये कोविड पीरियड आ गया था हमारे को, ठीक है ना, कोविड पीरियड बीच में शुरू हो गया था, तो यहां पर क्या हुआ था, ये सस्पेंशन हो गया था ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP। वो ये कहता है 10A क्या कहता है कि भाई 7, 9 या 10 में कोई भी लिखा हो, नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP shall be filed for any defect arising on or after 25th March। तो जो 25 मार्च से पहले डिफॉल्ट हो गए वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी डिफॉल्ट आपका 25 मार्च को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो उसमें पहले उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, बाद में उस 6 महीने को 1 साल बढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक में प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड, कभी भी नहीं फाइल होगी। कब नहीं फाइल होगी, इस डिफॉल्ट के पीरियड में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर 25 मार्च से लेकर के आप 1 साल काउंट कर लो, इस पीरियड की तो एप्लीकेशन जिंदगी में कभी फाइल ही नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डिफॉल्ट आपका 24 मार्च को हो गया, 20 मार्च को हो गया, अब 20 मार्च की जरूरी थोड़ी आप 20 मार्च को ही एप्लीकेशन लगाओगे, तो 20 मार्च की एप्लीकेशन लगाने के आपके डिफॉल्ट के पास 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, 3 साल में कभी भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कि 1 साल में तो कोई नई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। कब, अगर आपका डिफॉल्ट 25 मार्च या उसके बाद हुआ है तो, ठीक है, 1 साल तक। और वो ये कहता है कि नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड, और अगर आपका डिफॉल्ट इस पीरियड में हो गया तो आपको ये एप्लीकेशन कभी भी फाइल नहीं होगी। तो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified that the provisions of this section shall not apply to any defaults committed under the said section before, ठीक है ना। तो 25 मार्च से पहले अगर कोई डिफॉल्ट है तो वहां पर यह चीज अप्लाई नहीं होगी, मतलब सस्पेंशन हो गया, क्योंकि भाई कोविड पीरियड चल रहा है, उसमें वो कहते हैं भाई लोगों को वैसे ही पैसे नहीं है, मर रहे हैं लोग, तो अगर उस पीरियड में डिफॉल्ट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है,
सेक्शन 11 बात करता है, अभी हम लोग थोड़ा सा ना इसको जल्दी जल्दी पहले कवर करेंगे CIRP तक, ठीक है। CIRP के बाद जो है हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे इसमें, तो जब केस स्टडी डिस्कस करेंगे तो इन सेक्शंस को दोबारा रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 ये कहता है कि कौन कौन से लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अब इसको याद करने के लिए हमने तो बड़ा आसान फार्मूला बना रखा है। आप ये देखो कि एक आदमी ऑपरेशन टेबल पे है, अस्पताल में पड़ा हुआ, ठीक है, अभी उसकी बाईपास हुई है, तो उसकी बाईपास के बाद कुछ तो टाइम दोगे उसका, एक दिन बाईपास हुआ, अगले दिन थोड़ी बाईपास कर दोगे, तो उसके लिए इन्होंने 12 महीने का टाइम दिया, ठीक है। एक तो ये कि जिसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है वो नहीं एप्लीकेशन लगा सकता, ठीक है। दूसरा ये कि अभी 12 महीने हुए हैं, कंप्लीट हुए, ठीक है। तीसरा ये कि आपने कोई वायोलेशन कर दिया एनी टर्म्स ऑफ एनी रेजोल्यूशन प्लान, ये रेजोल्यूशन प्लान कौन देता है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है। और वो उसको अप्रूव हुए 12 महीने हुए हैं अभी, या फिर जिसका लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया। बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं जो कि पहले से ही वेंटिलेटर पे चल रही हैं, ठीक है, तो वो लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। उसके बाद में फिर कुछ ये क्लेम फॉर्म्स हैं, तो जैसे फॉर्म ए है फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट। ये जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ABCDEF इस तरह से ये फॉर्म्स हैं अलग अलग के लिए। जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए फॉर्म ए है, हर एक चीज के लिए जो IBC कोड है इसमें कोई अपनी अंग्रेजी नहीं लिखनी है आपको। आपको क्या करना है, जो भी लिखना है वो सिर्फ आपको अटैचमेंट्स में सुविधा है कि अटैचमेंट में आप लगा सकते हो, बाकी तो हर चीज के लिए फॉर्म है। आपको क्लेम भी फाइल करना है तो क्लेम के लिए फॉर्म है, उस फॉर्म में ही फाइल करना है। अटैचमेंट्स आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या क्या अटैचमेंट लगाना चाहते हो। तो फॉर्म ए है पब्लिक अनाउंसमेंट, फॉर्म बी है प्रूफ ऑफ क्लेम बाय OC एक्सेप्ट वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज। अब इसमें भी जब हम रेगुलेशंस पे जाते हैं तो रेगुलेशंस में कुछ फॉर्म का तो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ही फाइल करना है आपको, कुछ फॉर्म में ये है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक या पोस्ट दोनों मीडियम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें उस चीज को रेगुलेशन से पढ़ लेना है कि कौन से फॉर्म में किस मेथड, किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा फॉर लॉजमेंट ऑफ क्लेम्स। तो फिर फॉर्म सी है प्रूफ ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, इसको बाय पोस्ट नहीं भेज सकते। फिर फॉर्म डी है प्रूफ ऑफ क्लेम बाय वर्कमैन और एन एम्प्लॉय, इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। फिर फॉर्म ई है प्रूफ ऑफ क्लेम ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज। तो कई बार क्या होता है, जैसे ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन मान लो 3000 एम्प्लॉयज हैं, 3000 एम्प्लॉयज अलग अलग ना फॉर्म भर के उनके ब्याह पर ट्रेड यूनियन ही फॉर्म भर देती है। फिर फॉर्म एफ है, फॉर्म एफ क्या है, प्रूफ ऑफ क्लेम। मान लो कोई आदमी ना OC में आता ना FC में आता, ठीक है, मान लो किसी ने कोई एप्लीकेशन मनी दे रखे शेयर मनी, है ना वो FC में आएगा ना वो OC में आएगा, क्योंकि FC में तो बात करता है भाई इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए, है ना, अगेंस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए। OC में क्या, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो कोई ऐसा भी हो सकता है ना वो FC हो ना वो OC हो, उसके लिए इन्होंने फॉर्म F बना दिया, ठीक है। फिर फॉर्म FA बना दिया, अगर आपने विड्रॉ करना है तो फॉर्म FA है। एक फॉर्म G है, फिर इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्म G भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। फॉर्म G ये जितने भी होते हैं ये IBBI की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। बेसिकली कोई भी कंपनी जो CIRP में जाती है तो उसके लिए इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाता है कि भैया कौन कौन इस कंपनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान देना चाहते हैं। और फिर फॉर्म H है, तो उस हिसाब से याद कर, इसको भी ऐसे याद कर ले कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के बाकी सबको इलेक्ट्रॉनिक और पोस्ट दोनों देने हैं। हाँ ठीक है। और फॉर्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फॉर्म F में जो है ये अपना फॉर्म H हो गया हमारा कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या है, बेसिकली जब ये CIRP कंप्लीट हो जाती है तो ये RP को देना होता है फॉर्म H कि भाई सारी जो जितने भी प्रोविजंस ऑफ लॉ है वो कंप्लाई विद हमने की है। ये जो 11 है, 11 में क्या हुआ, द एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड एज एक्सप्लेनेशन 1 एंड पहले तो इसमें एक ही एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 पे चलते एक बार। सेक्शन 11 में क्या एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन 1 थी पहले। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि वर्ड वहां कॉर्पोरेट डेटर है तो कॉर्पोरेट डेटर में कहता है कि वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी है उसके अंदर, ठीक है। अब उसको जो पहले एक ही एक्सप्लेनेशन थी तो उस पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, अब उसको बना दिया 1 और फिर एक्सप्लेनेशन 2 भी लगा दी।
तो 2 में क्या कहा, 2 में ये कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटर रेफर टू इन क्लॉज A to D फ्रॉम इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। इसका मतलब क्या है, एक आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको तो तंग नहीं कर सकते, वो दूसरों को तंग कर सकता है। जिस कंपनी की CIRP चल रही है, मान लो उसने भी पैसे लेने हैं, वो कहेगा भैया मेरी कंपनी बंद होने के कगार पे है, वो दूसरे की एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, मान लो जो कंपनी CIRP में चल रही है उसने भी तो लोगों से पैसे लेने होंगे, देने तो है ही, डिफॉल्ट है तभी तो इस CIRP में आई है, लेकिन उसने लेने भी तो होंगे, जो लेने हैं अगर वो नहीं देता तो उसकी भी तो CIRP चला सकता ना, ये मतलब है इसका। ठीक है, वो ये कहता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर इन क्लॉजेज में रेफर्ड है A to D, A to D क्या था, वही था जो बीमार वाली क्लॉजेस। ठीक है, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, वायलेशन हो गया, लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, या पहले से ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, ऐसा आदमी दूसरे की CIRP इनिशिएट करा सकता है। ठीक है, गुप्ता जी अब- यहाँ पे वो इनएलिजिबिलिटी नहीं आएगा 29A जो है? किसका, क्यों इनएलिजिबिलिटी की क्या बात आ गई इसमें, कुछ नहीं। नहीं, अभी जो जो ऑलरेडी CRP जिसका चल रहा है, वो दो ऐसा है ना, देखो नहीं 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 नहीं, 100%। नहीं, क्यों नहीं भाई, ऐसा ना उसने पैसे लेने हैं ना भाई, एक कंपनी CIRP में है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट तो होगी ना, बैलेंस शीट में कुछ डेटर होंगे कुछ क्रेडिटर होंगे, जिससे उसने पैसे लेने हैं वो पैसे नहीं देता, उसको डिफॉल्ट कर देता है, तो उसकी CIRP की एप्लीकेशन ये लगा देगा बंदा जो खुद CIRP में है। ये सर कोई रेजोल्यूशन प्लान थोड़ी सबमिट कर रहा है, वो तो एप्लीकेशन लगा रहा है और इसका हाँ, provision इसका क्या कोई है? 29 से कोई मतलब नहीं है इस कोई बात मतलब का। नहीं। ओके ओके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या कहता है कि टाइमलाइन जो है वो 180 डेज की है। ठीक है, अभी ये 330 डेज का हो गया, लेकिन फिर भी टाइमलाइन जो है वो 180 डेज के हिसाब से ही डिजाइंड है और उसके हिसाब से ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि वो आप 330 डेज तक सोए रहो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक्सटेंशन जो है आपको अप्लाई करनी है टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 180 डेज। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ COC। और ये कहता है कि एक्सटेंशन नॉट एक्सीडिंग 90 डेज इट विल बी इंस्ट्रक्टेड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय COC विद 66% वोटिंग। तो जो COC है वो 66% वोटिंग से ये रेजोल्यूशन पास करेगी कि भाई आपको एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। अप्लाई नेचुरली RP करेगा। ठीक है, और ये एक बार ही ग्रांट होगी। अभी भी अगर 12 सबसेक्शन 1 को पढ़े तो 180 डेज की ही बात करता है। जी, इसमें ना एक और प्रोवाइजो आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर। तो पहले तो ये था कि भाई आपको एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अब इसमें सेकंड प्रोवाइजो भी आ गया। सेक्शन 12A का सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 330 डेज। ये पीरियड ये पहले नहीं था, अब ये इन्होंने लिख दिया वर्ड मैंडेटरीली। लेकिन मैंडेटरीली को भी बहुत सारे जजमेंट्स में ये कहा कि भाई इसको ऑर्डिनरीली पढ़ो। इसका मतलब क्या, 330 दिन के बाद भी एक्सटेंशन मिल सकती है अगर जेन्युइन रीजन है तो। पर यहां पर जो वर्ड लिखा वो लिखा मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंक्लूडिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ CIRP ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन एंड द टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट। कई बार क्या होता है कि कोई लीगल केसेस हो गए, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया, तो वो कहता है भाई आप 180 के बाद 90 की एक्सटेंशन लेते हो। उसके बाद में क्या करते थे, ये एक्सक्लूड करते थे कुछ पीरियड। पहले क्या होता था, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास मान लो 270 दिन में भी कंप्लीट नहीं हुई तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते थे और क्या कहते थे कि भैया ऐसा है कि हमारा तो ये टाइम वेस्ट हो गया, इसमें 200 दिन तो हमारे वैसे वेस्ट हो गए, तो 200 दिन हमारे एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया भाई एक्सक्लूजन कुछ नहीं, हम आगे इफ यू हैव लॉस्ट एनी टाइम इन लिटिगेशन तो 330 में कर लो। लेकिन 330 में भी कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर वो कह लगे भाई इमीडिएटली को भी ऑर्डिनरीली पढ़ लो। अच्छा, उसके बाद में थर्ड प्रोवाइजो भी आ गया। क्या कहा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर इज पेंडिंग एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन द पीरियड रेफर्ड टू इन द सेकंड प्रोवाइजो। तो सेकंड प्रोवाइजो क्या था, सेकंड प्रोवाइजो सच रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये क्या है,
ये बात करता है। सेकंड प्रोविजो क्या बात करता है? सेकंड प्रोविजो कहता है कि 330 में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जब ये अमेंडमेंट आया 330 का, तो कुछ सीआईआरपी पहले से पेंडिंग हो रही होगी, वो पहले से लेट चल रही है ट्रेनें, ठीक है, पहले से 400-500 दिन हो चुके उनके। तो वो ये कहता है कि जिसकी भी पेंडिंग है उसको 90 दिन और 90 दिन के अंदर कंप्लीट करो। जो नई है उसके लिए तो कह दिया 330, 180 + 90 मैक्सिमम 330 इफ एनी टाइम इज लॉस्ट इन लिटिगेशन। लेकिन जो पुरानी बसें डिपो से निकल चुकी हैं उनका क्या होगा? उनके मान लो 400-500 दिन पहले ही हो चुके, तो उन्होंने कहा 90 दिन आप और ले लो, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है सेक्शन 12A। ये सेक्शन 12A क्या कहता है? सेक्शन 12A बात करता है कि प्रोविजन फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन इवन आफ्टर एडमिशन, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन एक बार एडमिट हो गई, 12A का मतलब क्या है? 12A का मतलब ये है कि ये पहले ओरिजिनल नहीं था कोड में, बाद में आया है ये। पहले क्या होता था, वो कहते थे भाई एक बार एडमिट हो गई फिर तो इसकी सीआईआरपी होगी ही होगी। एक बार हमारे अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में बंदा पहुंच गया फिर तो वहां से ऑपरेशन करके ही हम इसको बाहर निकालेंगे। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब इन्होंने कहा कि भाई अगर सीओसी एग्री करती है विद 90% वोटिंग मेजोरिटी तो आप एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एप्लीकेशन विड्रॉ करेगा कौन? एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट ही विड्रॉ कर सकता है। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि सीओसी एग्री कर ले विद 90% वोटिंग पावर। 90% का मतलब क्या है? 10% तो फिर भी बाहर रह गए। जो बाहर रह गए उन्हीं में से मान लो किसी ने एप्लीकेशन लगाई हो, कहे तुम करते रहो 90% से, मैं तो नहीं एग्री करता विड्रॉल के लिए, तो विड्रॉल नहीं होगा, वो एप्लीकेंट ही विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। फिर अगले में क्या है? सेक्शन 13। सेक्शन 13 ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये एक मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर देगी और आईआरपी अपॉइंट कर देगी, ठीक है, जहां पर अपॉइंट नहीं हुआ। ये साइमल्टेनियस ही होता है आजकल। और एक तो सेक्शन 13 में इट विल डिक्लेयर ए मॉरेटोरियम। दूसरा पॉइंट है एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे एंड कॉल फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन 15। और तीसरा एंड आईआरपी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये 3 काम इनको करने हैं। अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ? सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में ये अमेंडमेंट हुआ सब सेक्शन 3 के बाद आफ्टर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन 12 प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 3 एक बार देख लेते हैं क्या है। ये है जी। तो यहां पर इन्होंने नया प्रोवाइजो दे दिया, वो मैंने आपको बता दिया 330 डेज वाला, ठीक है। तो 330 डेज में 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर कोई टाइम लॉस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग है तभी मिलेगा 330। दूसरी बात ये है जो पहले से चल रहे हैं उनको 90 डेज का पीरियड मिल जाएगा, ठीक। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने इतनी राम कथा पढ़ ली, ठीक है, 13 तक। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये तो पता चल गया भाई एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है ना। तो अब एप्लीकेशन लगानी कौन से फॉर्म में है, कौन से एड्रेस पर भेजनी है, कोरियर करना है, स्पीड पोस्ट करना है, वो सब बातें यहां पर रूल्स के अंदर दी हुई, ठीक है। इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, ठीक है। तो ये रूल्स भी हमारे कोर्स में हैं। और इन रूल्स में क्या क्या लिखा है? इसमें एक तो फॉर्म दे रखे हैं, ठीक है, और मैनर बता रखा है। जैसे अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन लगानी है तो कैसे लगानी है? अपने आप लगा सकता है या ज्वाइंटली लगा सकता है। कौन से फॉर्म में लगाएगा? फॉर्म 1 में लगाएगा। देखो वो जो हमने पहले फॉर्म पढ़े थे ना वहां पर, वो अलग फॉर्म थे। अब कहोगे यार वो तो ABCD बता रहे थे आप। ये फॉर्म है क्लेम के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने पैसे लेने हैं या पब्लिक अनाउंसमेंट, ये क्लेम्स के लिए फॉर्म है बेसिकली। ABCDEF, F के बाद FA आ गया, फिर G आ गया, फिर H आ गया। ये तो फॉर्म। और ये जो फॉर्म अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहां पर कौन से फॉर्म है? यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि फॉर्म 1 में लगेगी एप्लीकेशन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए, और उसके अंदर क्या क्या लगाना है। अब ये भी हो सकता है कि कोई असाइनी भी हो सकता है,
ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि भाई डेट इंक्लूड्स ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ डेट, ये भी हमने पढ़ा डेफिनेशंस में पढ़ा था ना। तो वो ये कहता है कि अगर कोई असाइनी है, अगर मतलब जैसे डेट मान लो हमने दिया था आईडीबीआई को, अब कंपनी कहेगी यार मैंने तो लोन लिया था आईडीबीआई से, ये पता नहीं कौन सा दूसरी कंपनी आ गई, मैंने तो एडलवाइस से लोन ही नहीं लिया, अब एडलवाइस एप्लीकेशन दे रही है, ये क्या चक्कर है। तो वो एडलवाइस के पास कैसे आया होगा, आईडीबीआई ने असाइन कर दिया होगा बाय वे ऑफ असाइनमेंट एग्रीमेंट। तो अगर कोई असाइनी है या कोई ट्रांसफरी है तो उसमें कॉपी ऑफ असाइनमेंट या ट्रांसफर एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द असाइनमेंट और ट्रांसफर। ठीक है, द एप्लीकेंट शैल सर्व ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसको लगा रहा है, सेक्शन 7 ये लगा रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लेकिन उसके डेटर को भी कॉपी देगा और बोर्ड को कॉपी देगा। ठीक है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कॉपी किस किस को देगा, कहां पर देगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे देना है, कॉर्पोरेट डेटर के, और बोर्ड मतलब आईबीपीआई, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यहाँ पर कोरियर कवर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो कोरियर यहाँ पर कवर्ड नहीं है, इन पे भी सवाल पूछ लेते हैं। बिफोर फाइलिंग विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से फाइल करने से पहले एक कॉपी ऑफ नोटिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट और बोर्ड को भी कॉपी देगा। कैसे देगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या बाय हैंड या बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अच्छा, अगर मान लो एप्लीकेशन ज्वाइंट एप्लीकेशन है तो वो एक को नॉमिनेट कर सकते हैं कि भैया टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। फिर ये तो हो गया हमारा सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन। अब अगर सेक्शन 8 वाली एप्लीकेशन है तो सेक्शन 8 की एप्लीकेशन कैसे लगेगी, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाने से पहले हमने 8 में कुछ पढ़ा था। अब हम सोचेंगे यार फॉर्म 1 के बाद 3 कहां से आ गया, 2 कहां चला गया। तो 2 बेसिकली क्या है, वो कंसेंट देने के लिए फॉर्म है जो आईआरपी कंसेंट देता है कि मेरे अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही, और अगर ये असाइनमेंट अलॉट, ये एप्लीकेशन एडमिट होती है तो आई एम विलिंग टू एक्ट एज आईआरपी, ये फॉर्म 2 है। ठीक है, वो आगे पढ़ ले। तो 3 में है डिमांड नोटिस और 4 में है इनवॉइस। डिमांड नोटिस और इनवॉइस में मैंने फर्क आपको बता दिया था। डिमांड नोटिस तब होता है जब इनवॉइस रेज नहीं किया होता। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो सर्टेन माइलस्टोन्स पर आप इनवॉइस रेज करते हो, लेकिन काम तो आपका रेगुलर बेसिस पे चल रहा है ना, तो उस केस में आप डिमांड नोटिस करोगे। या जैसे मैंने सीए का एग्जांपल लिया, सीए काम तो रोज कर रहा है लेकिन इनवॉइस तो रोज नहीं रेज कर रहा ना, तो उस केस में डिमांड नोटिस देगा और ये कॉपी ऑफ इनवॉइस देगा इन फॉर्म 4। ठीक है, और ये जो है डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ इनवॉइस देनी कहां पर है, ये देनी है मे बी डिलीवर्ड, वर्ड लिखा है डिलीवर्ड, ठीक है, टू द कॉर्पोरेट डेटर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बाय हैंड, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, हैंड, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। और वहां पर क्या था, यहां पर देखो एक्नॉलेजमेंट ड्यू नहीं लिखा है, इतने इतने पर भी सवाल पूछ लेते हैं। यहां पर बाई हैंड भी है या बाई इलेक्ट्रॉनिक भी है, 4 तरीके दे रखे हैं सेक्शन 7 वाले के लिए। क्या क्या, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, हैंड, बाई इलेक्ट्रॉनिक मींस। और यहां पर क्या दे दिया, यहां पर दे दिया इन्होंने बाई हैंड, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो क्या नहीं दिया इसमें, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मींस नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद में दे दिया बाई इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस टू ए होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर और केएमपी इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो ईमेल भेजनी है किसको, होल टाइम डायरेक्टर या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी में या केएमपी है, इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब आप कहोगे जी ये पता कैसे चलेगा कि कौन होल टाइम डायरेक्टर है। ठीक है, वो एमसीए से डेटा देखेगा, एमसीए के डेटा के बेस पे करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो अपना भी करेगा काम। A copy of the demand notice or invoice demanding payment served under this rule by an operational creditor shall also be filed with an information utility if any। तो इसकी जो कॉपी है डिमांड नोटिस या इनवॉइस की, इसको फाइल करना है किसके पास, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या चीज है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। इससे क्या होता है, ये ना अपना डेटा बनाते जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई इन्होंने ये पैसे देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं, ये चार्ज क्रिएट हुआ, ये सारी चीजें। तो इसको जो कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस या इनवॉइस जो है ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास भी फाइल
करना है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल क्रेडिटर केस में। बेसिक बात क्यों नहीं है, वो ये है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है बेसिकली बैंक्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि बैंक जो भी अपना मान लो लोन डिस्पर्स करेंगे या कोई चार्ज क्रिएट करेंगे, चार्ज सेटिस्फाई होगा तो उस सारी इंफॉर्मेशन बैंक देगा एनईएसएल को। ठीक है, यहां पर क्या है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के ऊपर तो कोई ऐसी जिम्मेदारी डाली नहीं, तो इन्होंने कह दिया भाई जब ये इनवॉइस रेज करोगे या डिमांड नोटिस दोगे तो उसकी कॉपी आप वहां पर फाइल कर देना। एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो 3 और 4 तो हो गए हमारे, क्या हो गए, डिमांड नोटिस और इनवॉइस। अब 5वां नंबर आ गया, 2 मैंने पहले बता दिया, कॉन्सेंट। ठीक है, तो फॉर्म 5 में क्या होगा, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर shall make an application for initiating the corporate insolvency resolution process against a corporate debtor under section 9 in form 5। तो फॉर्म 5 में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इसको, और इसकी कॉपी देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड टू द बोर्ड। ठीक है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और बाय हेड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ये दोनों चीजें सेम है ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी और फाइनेंशियल क्रेडिटर में, जो कॉपी देने की बात है ये दोनों जगह सेम है। एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन लगाता है, सेक्शन 10 में। ये क्या करेगा, इसके लिए फॉर्म 6 है, अकॉम्पनीड विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और यहां पर भी वो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, हैंड या बाय इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एक एक शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर मान लो इसमें 4 चीज लिखी है उसमें 3 है, तो आपको देखना है कौन सी में कौन सी नहीं है, उसी पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मोड ऑफ सर्विस, कोरियर जोड़ देगा उसमें। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में परमिट विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एज द केस में बी ऑन ए रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर इट्स एडमिशन। 2 चीजें हैं, जो आफ्टर एडमिशन है वो गवर्न होता है सेक्शन 12A से। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर इसके पास डिस्क्रिशन है, ये विड्रॉल परमिट कर सकता है इवन बिफोर एडमिशन। मतलब 2 चीजें होंगी, एक तो हो गया बिफोर एडमिशन, एक हो गया आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन तो क्या है, सीओसी से आप अप्रूवल लाओ 66 मेजॉरिटी से, तो आपका विड्रॉ होगा। यहां पर क्या है, अभी तो सीओसी तो बनी नहीं, ठीक है ना, अभी एप्लीकेशन एडमिट ही नहीं हुई, एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई, सिर्फ नोटिस गया। ठीक है ना, तो नोटिस गया तो उसके बेसिस पे भी, मान लो नोटिस के बेस पे उसने पेमेंट कर दी, तो वो चले जाएंगे, लो जी हमारी पेमेंट हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कई बार अलाउ कर देते हैं, कई बार कॉस्ट भी लगा देते हैं। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोविजनल, ये आ गया फॉर्म 2 जो बेसिक था। ठीक है, द एप्लीकेंट वेयरएवर इज रिक्वायर्ड टू प्रपोज और प्रपोजेस टू अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोविजनल, उससे एक तो रिटर्न कम्युनिकेशन ले लेगा फॉर्म 2 में फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल फॉर अपॉइंटमेंट एज आईआरपी। ठीक है, और उसको भी एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। ठीक है, द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टिफिकेट, तो उससे एक सर्टिफिकेट भी ले लेगा कंफर्मिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि भाई आप जो है कंपिटेंट हो इसके लिए। फिर फाइलिंग, ये फीस कैसे होगी, ये भी इसके अंदर इन्होंने पूरा चार्ट दे रखा है कि कैसे कैसे आपको करना है। ये फिर सारे फॉर्म्स दे रखे हैं, फॉर्म्स के अंदर भी आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं कि जैसे ये है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर वाला फॉर्म है सेक्शन 7, इसके अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स पे भी सवाल पूछ लेता है कि पार्ट 1 किससे परटेन करता है, या पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट इन केस ऑफ फॉर्म 1 आर कंटेन्ड इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नन ऑफ द, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो पार्ट 1 में नॉर्मल ये है कि पार्ट 1 में सबसे पहले जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो अपने पर्टिकुलर देगा, ठीक है ना, और जैसे पार्ट 2 है दूसरी अपोजिट पार्टी के पर्टिकुलर देगा। ठीक है ना, सेक्शन 7 में जो कॉर्पोरेट डेटर मतलब जिसकी कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी हो रही उसके पर्टिकुलर्स। थर्ड में हो गया पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड आईआरपी, ये इसमें आईआरपी के पर्टिकुलर हो गए। पंडित कौन है, ठीक है, पहला कौन है, ये वाला जो जिसको ऑब्जेक्शन है ये उसके है। ठीक है, वो हो गया समझ लो लड़के वाला, ये हो गया लड़की वाला। ठीक है, तीसरा हो गया पंडित, ठीक है, जो प्रपोज्ड आईआरपी है आपका। फिर पार्ट 4 में क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल डेट। ठीक है, जो फाइनेंशियल डेट जो लिया था कंपनी ने उसकी बात कर रहा है, उसके डेट के पर्टिकुलर 2 सारी चीज। उसके बाद पार्ट 5 में आ गया पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल डेट, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई सिक्योरिटी दे रखी है या कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है,
ये सारा फिर आप पढ़ सकते हो। फिर फॉर्म 2 आ गया आपका, ये रिटर्न कॉन्सेंट हो गई, ठीक है ना, कि भाई मैं क्वालिफाइड हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये फॉर्म 2 भरा जाता है, इसमें सारी चीजें देनी पड़ती हैं कि आपके पास अभी कितनी असाइनमेंट है एज IRP, RP, लिक्विडेटर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मान लो पहले ही बहुत सारी हैं आपके पास, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती, भाई ये तो पहले ही ओवरबर्डन्ड है, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट प्रोसेस में क्या क्या एप्लीकेशन अभी तक आपके पास है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ क्लोजर भी है, सब कुछ चीजें इसके अंदर है, ठीक है। फिर फॉर्म 3 है डिमांड नोटिस या इनवॉइस पेमेंट, तो इसको आप देख सकते हैं। फॉर्म 4 है फिर आपका फॉर्म ऑफ नोटिस इन विच इनवॉइस इज टू बी अटैच्ड। तो फॉर्म 3 में इनवॉइस नहीं अटैच करना, यहां पर आपको इनवॉइस अटैच करना है फॉर्म 4 में। ये ओसी है, एप्लीकेशन बाय ओसी, फॉर्म 5 में, ठीक है। ये फिर इसमें भी पर्टिकुलर्स है, इनको तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेंगे आप। और ये फिर फॉर्म 5A है। फॉर्म 5A कहता है कि भाई आप बैंक से लिखवा लाओ कि भाई इसकी पेमेंट जो है हुई है नहीं हुई, क्या वो चीज, ठीक है। वो ये कहता है बेस्ड ऑन ए रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन हैविंग एन अकाउंट नंबर इतना, इट इज सर्टिफाइड दैट द फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन क्रेडिटेड द लास्ट 3 years टू दिस अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो वो पूरी सर्टिफिकेट ले आते हैं, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 में जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, जो सेक्शन 10 में एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है। अब जो सेक्शन 10 में जो एप्लीकेशन लग रही है, ये आप देखो कि इसके खुद के पर्टिकुलर्स इसमें आ रहे हैं पहले, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या आ रहा है, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा है कि भैया ऐसे मेरे बस का नहीं है कंपनी चलाना, सेक्शन 10 में, ठीक है ना, डिफॉल्ट हो गया कंपनी का। तो फॉर्म 10 मतलब पार्ट 1 में खुद के पर्टिकुलर्स हैं, दूसरे में फिर IRP, और तीसरे में है पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेट क्रेडिटर वाइज एज एप्लीकेबल। मतलब इसको टोटल देना पड़ेगा हर एक आदमी का, कितना कि नेम वाइज देने पड़ते हैं कि ये नाम है उसका फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर का, उसका ये एड्रेस है, टोटल अमाउंट है, सारी चीजें, अगर कोई सिक्योरिटी है तो वो सारी चीजें इसको देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्म। ये हमारा शेड्यूल ऑफ फीस है। तो शेड्यूल ऑफ फीस में क्या है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएगा 25,000 रुपए देने हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर 2,000 रुपए और कॉर्पोरेट क्रेडिटर 25,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 ये तो हो ही गया हमारा, ठीक है ना। तो सेक्शन 13 में हमारे पास पॉइंट्स जो थे वो ये था कि भाई एक तो मॉरेटोरियम हो जाएगा डिक्लेयर, एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा, और तीसरा IRP अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 ये कहता है कि ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या पढ़ चुके हैं पहले ही, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर मॉरेटोरियम लग गया। मॉरेटोरियम का मतलब ये है कि भाई ये कंपनी वैसे ही मरी हुई है बेचारी, इसको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। नया सूट कोई फाइल मत करो, पुराना है तो उसको रोक लो वहीं पर ही, ठीक है ना। डिक्लेयर मॉरेटोरियम टिल कंप्लीशन ऑफ CIRP प्रोसेस। CIRP प्रोसेस कब कंप्लीट होगा हमारा, 180 या 90 प्लस या 330 या और भी उससे आगे, और इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। तो सेक्शन 14 हमारा जो बात करता है, सेक्शन 14 बात करता है कि यहां पर ये मॉरेटोरियम आपका लग जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, नया सूट आप फाइल नहीं कर सकते, कोई पुराना पेंडिंग सूट है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, या प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एक्सिक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल और अदर अथॉरिटी। अगर कोई जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर पास हो गया, उसका एक्सिक्यूशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक इसमें केस लॉ हम पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है, वो ये कहता है दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट which do not result in diminishing the assets of the corporate debtor are not prohibited। मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या होता है, सेक्शन 34 में प्रोसीडिंग चलती हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है 34 की प्रोसीडिंग चल सकती है, किस केस में चल सकती हैं, जिससे कि एसेट्स की वैल्यू अगर कम ना हो तो, ठीक है। तो दे आर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर 14(1)(a), ठीक है।
तो आर्बिट्रल अवार्ड पास्ड इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज एक्सिक्यूटेबल एंड नीड नॉट बी स्टेड, ठीक है। तो वो कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो एक्सिक्यूटेबल है और उसकी स्टे की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 14 ऑफ द कोड वुड नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स व्हिच आर इन द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। भाई कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें इसको फायदा हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारे पर ही कोई स्टे है। अगर कोई ऐसा स्टे है, मान लो कोई डिक्री कंपनी के फेवर में हो रही है, वो चल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, बेसिक पर्पस क्या है 14 का, कि उनको इंटैक्ट रखना है। उसको बढ़ा तो सकते हो, कम नहीं कर सकते, ठीक है। Unlike the proceedings under debt recovery action and its conclusion, since they would diminish or impact the assets of the corporate debtor, ठीक है। फिर उसके अलावा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एनकम्बर नहीं कर सकते, एलिनेट या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते एनी ऑफ द सीडी एसेट्स और बेनिफिशियल इंटरेस्ट। थर्ड है एनी एक्शन टू फोरक्लोज एंड फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड और इन पोजीशन ऑफ द सीडी। इसका क्या मतलब है कि आपकी कंपनी ने किसी बंदे से किराए पर ले रखी है कोई जगह या लीज पर ले रखी है, तो वो बंदा आपसे खाली नहीं करवा सकता जब CIRP चल गई तो, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट है, इट इज प्रोहिबिटेड रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर। अब आप कहोगे यार ये तो अजीब बात हो गई, ना तो आप किराया दे रहे, पैसे है देने के लायक नहीं है, ना आप उसका मकान खाली कर रहे हैं, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। वो फिर उस केस के बारे में वो 53 आंसर करता है। 53 क्या कहता है, 53 ऐसा जो है वो फिर उसको भी क्रेडिटर मान लिया जाता है, ठीक है। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा 14 में क्या कहा इन्होंने, एक एक्सप्लेनेशन लगा दी, ये फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड। क्या कहा कि भाई नॉटविथस्टैंडिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, तो अगर कोई लाइसेंस है, कोई परमिट है, रजिस्ट्रेशन कोटा, क्योंकि देखो ये सेक्शन 14 का मतलब क्या है, सेक्शन आईबीसी का मतलब क्या है, आईबीसी का मतलब ये है बेसिकली कि भैया कंपनी को रिवाइव करना, ठीक है। अब कंपनी मान लो उसके पास कोई लाइसेंस है, उसका लाइसेंस ही तुम कैंसिल कर दोगे, तो उस कंपनी को खरीदेगा कौन। अगर कोई आपके पास इन्वर्टर है और इन्वर्टर में से कोई बैटरी निकाल ले, तो उस इन्वर्टर को कौन खरीदेगा, डब्बा रह जाएगा तो खाली, ठीक है ना। तो यहां ये कहता है कि भाई अगर किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, जो लाइसेंस आपके पास है, जो परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, कोटा है, कंसेशन या क्लियरेंसेस, जो भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या आपका कोई सेक्टरल रेगुलेटर है, ये क्या है, ये सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भैया कुछ भी ना दो और कैंसिल भी नहीं होगा। वो ये कहता है कि भैया करंट ड्यूज आप देते रहो, ठीक है। करंट ड्यूज का मतलब क्या है, करंट ड्यूज का मतलब ये है कि भाई आपने कोई स्पेक्ट्रम लाइसेंस ले रखा है, अब अगर आप करंट ड्यूज आपके बन रहे हैं, करंट ड्यूज का मतलब तो आप स्पेक्ट्रम किसी को सेल भी कर रहे हो ना, सर्विसेज भी दे रहे हो, मान लो कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो कहता है करंट ड्यूज आप क्लियर करते रहो, बाकी वाले बाद में क्लियर कर देना। तो बाकी जो पुराने वाले हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले वाले हैं, उसके बेसिस पे कि वो ड्यू है हमारे, आपका कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट वगैरह कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन करंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, वो बात जायज भी है। उसके बाद में कहता है आफ्टर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड। वो कहता है कि भाई जहां पर आईआरपी को लगता है या आरपी को लगता है कि जी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, कोई ऐसी सर्विसेज है जो क्रिटिकल है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, तो ऐसी सप्लाई को रोका नहीं जाएगा। पर्पज वही है कि कंपनी को बंद करना पर्पज नहीं है, उसको ऐसी सिचुएशन में नहीं लाना है कि कोई खरीदारी ना बचे उसको। तो वो कहता है अगर कोई क्रिटिकल इनपुट्स हैं तो उसकी सप्लाई भी टर्मिनेट, सस्पेंड या इंटरप्ट नहीं होगी, और सिर्फ ये है कि भाई आपको करंट वाले देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट वेयर सच कॉर्पोरेट डेटर हैज नॉट पेड ड्यूज अराइजिंग फ्रॉम सच सप्लाई ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम लगता कब है, जब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, उससे बाद वाले को आपको देना है, मतलब करंट ड्यूज देनी है, पुराने वाले के लिए ये आपके सप्लाई को नहीं रोक सकते, ठीक है। और फिर क्या आता है कि सबसेक्शन 3 में फॉर क्लॉज ए
the following clause shall be substituted, namely such transactions, agreements or other arrangements as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator or any other authority. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो आपका सब क्लॉज 3 थी, वहां पर क्लॉज ए पहले कुछ और थी, अब कुछ और है. पहले वाली भी देख लेते हैं क्या थी और अब वाली क्या है वो भी देख लेते हैं. ये 3 में इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि सच ट्रांजैक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ट्रांजैक्शन के बजाय उन्होंने एग्रीमेंट्स या अदर अरेंजमेंट्स भी 2 वर्ड और शामिल कर लिए. ठीक है, बाकी सारा जो है, और उसमें था कि कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी भी जोड़ दिया. तो इसमें जोड़ा क्या? ट्रांजैक्शन तो पहले से ही था, एग्रीमेंट और अदर अरेंजमेंट जोड़ दिया, और पहले सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर था, अब एनी अदर अथॉरिटी भी जोड़ दिया. ठीक है, अब हमारा फिर आता है सेक्शन 15. इसको कल करते हैं, है ना? तो सेक्शन 14 तक आज हमने मोटा मोटा देख लिया, और सेक्शन 15 से फिर कल करते हैं. नहीं ठीक है सर. ऐसा होता है जी, आप पुरानी भी मेरी रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं